Good evening, sir. Good evening, everyone. So, this is your 1989 Act, or since we are studying for the cooperative working in the JNK, तो ये हम एक्ट जो है ये डिटेल में देखेंगे. This is your 1989 Act. There are two acts in state of Jammu and Kashmir. Erstwhile state of Jammu and Kashmir. Currently, it is Union Territory. उसके स्टेटस पे हम बाद में आएंगे. So, this is our 1989 Act. Quick reminder that 1989 Act is your state cooperative act, whereas 1999 Act is based on Model Act, which is for self-reliant cooperatives. So what are self-reliant cooperatives and how are they managed? We will see when we will talk about the 1999 Act. Currently, we are discussing about the 1989 Act, under which the cooperative societies are managed in the areas of Jammu and Kashmir. So if we talk about first of all, we have to discuss about how the cooperative societies are registered in the in Jammu and Kashmir. So first point you have to keep in mind that in every state there is a registrar. He is the head of regulations for cooperatives. Whatever management, whatever regulations which are meant for the cooperatives under the Cooperative Societies Act, under any state or be it at the central level, the post which is created to handle all these things are registrar. Whenever the registrar is at the state level, it is called a state registrar. Whenever registrar is at the central level, let's say under the Multi-State Cooperative Societies Act, then the registrar is known as state register, central registrar. Now, how the registrar is appointed, it is very important that the government, this is basically the state government, yani ki the government of JNK. The government may appoint a person to be the registrar of cooperative societies for whole state for all types of societies and may appoint a person or persons to assist him. That means that the state government appoints the registrar for whole state. पूरे स्टेट के लिए एक रजिस्ट्रार अपॉइंट किया जाता है to deal with any kind of societies which are registered under the State Cooperative Societies Act. And in order to assist this registrar, government can also appoint person or persons to help him in running the department. So there can be a panel of sub registrars who are being appointed as assistant. So there is a provision for appointment of assistants to the state registrar. So under the 1989 Act of the Jammu and Kashmir Cooperatives Act, government appoints the person as the registrar of cooperative societies for the whole state, and he manages all types of cooperative societies and can also appoint government can also appoint assistants to the registrar of cooperative societies. Now this, the appointment of a person and subsequent appointment of his assistants depend upon the need and the vision with which the government is working. So these are the two things that you have to keep in mind, that it is the utmost power, or you can say it is the sole power of the state government to appoint the state registrar, and it is also decided by the state government if and when the state registrar requires any kind of sub registrars
under him in order to run the department. That will ultimately be the discretion of the state government. So government appoints the registrar of cooperative societies for whole state, and he manages all kinds of cooperative societies, and government can also appoint assistants to the registrar. So these are the things that you have to keep in mind. If we move ahead, second point that you have to keep in mind is that, again, second point that you have to keep in mind is that government can also confer any power to any person appointed to assist the registrar of the powers which are given to the registrar. That means that supposedly government has the power to transfer. Confer means transfer powers of the registrar under the act to any person who is being appointed to assist the registrar. That means that government appoints assistants who are there for help to the state registrar. Government state registrar की help के लिए assistant appoint करती है. Now, अगर government चाहे, so they can also transfer some of the powers of the registrar to these assistant. तो आसान भाषा में क्या आपको याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट को 1989 के एक्ट में दिस इज द पावर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट दैट दे कैन डेलीगेट पावर्स ऑफ द रजिस्ट्रार. जो पावर्स रजिस्ट्रार के हैं वो किसी असिस्टेंट को दिए जा सकते हैं जिनको रजिस्ट्रार के अंडर अपॉइंट किया गया है. ठीक है. और जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाएगा टू डील विद द पावर्स व्हिच आर वेस्टेड in the registrar but he is being given special permission by the state government, तो उसको वो सारे पावर्स एक्सरसाइज करने का राइट होगा. लेकिन आपको ये याद रखना है कि जनरल कंट्रोल जो है डिपार्टमेंट का वो रहेगा रजिस्ट्रार के पास ही. लेकिन अगर मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक पावर रजिस्ट्रार के पास है, तो स्टेट गवर्नमेंट ये कर सकती है कि बोले कि पावर नंबर 2 और पावर नंबर 5 जो है वो स्टेट रजिस्ट्रार के साथ साथ उसका असिस्टेंट भी करेगा. तो ये तो किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वो रहेगा रजिस्ट्रार के अंडर ही. वो रहेगा रजिस्ट्रार के अंडर ही. इसके साथ साथ इफ गवर्नमेंट वांट्स वो एडिशनल रजिस्ट्रार्स भी अपॉइंट कर सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जो रजिस्ट्रार को हेल्प करेंगे. अगेन जो भी ये एआरसीज भी अपॉइंट किए जाएंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स, इनको भी रजिस्ट्रार के जनरल सुपरिटेंडेंट्स के अंदर काम करना होगा. ठीक है. तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं आपके समझने के लिए. पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि गवर्नमेंट रजिस्ट्रार अपॉइंट करती है, रजिस्ट्रार को असिस्ट करने के लिए गवर्नमेंट उसके असिस्टेंट्स भी अपॉइंट करती है अगर जरूरत पड़े तो. दूसरा, गवर्नमेंट किसी एक ऐसे बंदे को भी असिस्टेंट बना सकती है रजिस्ट्रार का जिसको वो थोड़े पावर्स जो है रजिस्ट्रार के डेलीगेट कर देंगे कि भाई गवर्नमेंट चाहे तो रजिस्ट्रार के कुछ पावर्स इनको दे सकती है. ठीक है. लेकिन जो भी असिस्टेंट काम कर रहे हैं जिनको रजिस्ट्रार के पावर्स मिले हुए हैं उनके ऊपर जनरल कंट्रोल रजिस्ट्रार का रहेगा क्योंकि वो डिपार्टमेंट का हेड है. तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि रजिस्ट्रार को पूरे डिपार्टमेंट को चलाने के लिए गवर्नमेंट उसको एडिशनल रजिस्ट्रार्स भी अपॉइंट करके दे सकती है. एडिशनल रजिस्ट्रार्स का मतलब ये है कि एक तो आपका फुल टाइम रजिस्ट्रार है, इसके काम को बांटने के लिए उसी के साथ सेम लेवल पे एडिशनल रजिस्ट्रार्स भी अपॉइंट किए जाते हैं. ये कुछ ऐसा है जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है स्टेट में, उसके साथ आपका एडीएम भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया जा सकता है. या पुलिस में अगर आप लें तो स्टेट लेवल पे डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. लेकिन इस डीजीपी की हेल्प करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करते हैं, एडीजीपी भी अपॉइंट करते हैं. एडीजीपी का मतलब है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. एक तो डीजीपी हो गया, डीजीपी के लेवल पे ही एडीजीपी होता है. लेकिन क्योंकि ये डीजीपी नहीं है तो ये रहेगा तो जनरल गाइडेंस में इसके, लेकिन इनका रैंक आपस में बराबर होता है.
बट सीनियोरिटी लेवल पे फर्क होता है। वही सेम चीज यहाँ होती है कि एक तो स्टेट का रजिस्ट्रार है वो एक ही होगा, लेकिन उसके साथ उसके काम को बटाने के लिए कई सारे एडिशनल रजिस्ट्रार्स होंगे। ये आप बहुत सारे डिपार्टमेंट में देख सकते हैं, जैसे आर्मी में होता है। आर्मी में जनरल एक होता है, लेकिन उस जनरल के नीचे काम करने वाले आपके लेफ्टिनेंट जनरल्स बहुत सारे होते हैं। आपके जो वाइस चीफ हैं या एडिशनल चीफ हैं, अब एक्चुअली में होता क्या है, ये सारे एक ही रैंक के होते हैं, लेकिन क्योंकि जनरल एक ही बंदा बन सकता है तो वो एक आदमी को जनरल बनाते हैं, बाकी उसके पैरेलली जो लोग हैं वो रहेंगे इसके जूनियर ही, लेकिन इनका आपस में स्टेटस बराबर होता है। वही सेम चीज यहाँ पे है कि if government wants they can appoint any number of additional registrars to assist the registrar on whom any power of registrar is being conferred। तो वो गवर्नमेंट रजिस्ट्रार की हेल्प करने के लिए उसके लिए असिस्टेंट भी बना सकती है जो उसकी टीम में उसके नीचे काम करेंगे। इसके साथ साथ उस रजिस्ट्रार के काम को बांटने के लिए, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो आपके एडिशनल रजिस्ट्रार्स भी अपॉइंट कर सकती है। उन एडिशनल रजिस्ट्रार्स को भी रजिस्ट्रार की गाइडेंस के अंदर ही काम करना होगा। मतलब सुपरिटेंडेंस तो रजिस्ट्रार का ही रहेगा, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए वो एडिशनल रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिकेट टीम में एक कोच होता है, हेड कोच होता है, लेकिन उस हेड कोच के नीचे कई सारे असिस्टेंट होंगे, लेकिन उसके साथ साथ उस हेड कोच के साथ हो सकता है एक मेंटोर भी अपॉइंट कर दिया जाए या एक अलग से कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया जाए। वो कंसल्टेंट काम तो कोच वाला ही कर रहा है, लेकिन वो रहेगा जनरल सुपरविजन में कोच के। ये आप ऐसे समझो, जैसे अभी आपने न्यूज पढ़ा होगा कि T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की तरफ से जो क्रिकेट टीम अनाउंस हुई उसमें महेंद्र सिंह धोनी को मेंटोर बनाया गया। हेड कोच अभी भी आपकी टीम के रवि शास्त्री हैं, तो धोनी आप कह सकते हैं एडिशनल कोच है, तो वो काम तो कोचिंग का ही करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो ओवरऑल गाइडेंस है वो रवि शास्त्री करेगा क्योंकि वो हेड कोच है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है कि गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रार अपॉइंट किया, उस रजिस्ट्रार के पावर्स को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसी रजिस्ट्रार के नीचे बहुत सारे एडिशनल रजिस्ट्रार्स अपॉइंट कर दिए। इन एडिशनल रजिस्ट्रार्स का काम क्या है, इस रजिस्ट्रार को डिपार्टमेंट चलाने में हेल्प करना। इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस रजिस्ट्रार के नीचे उसके असिस्टेंट भी अपॉइंट कर सकती है, जिनको आप सब रजिस्ट्रार बोलेंगे, जो इनके जूनियर्स हैं, जो रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार के नीचे काम करते हैं। तो ये पूरा एक तरीके का डिपार्टमेंट बन सकता है। तो ये सारा काम आपका स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता, उसको स्टेट कोऑपरेटिव्स ही चलाते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन अब क्योंकि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन रीऑर्गेनाइज्ड इनटू यूनियन टेरिटरीज, तो अब उसके जो लेजिस्लेशंस हैं उनको सेंटर ऑल्टर कर सकता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो लेजिस्लेटिव पावर है उस पर्टिकुलर रीजन की वो पार्लियामेंट को ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, इसमें आपके दो एक्सेप्शंस हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है यूनियन, those territories which are being directly administered and under the responsibility of union government, whether it is Chandigarh, whether it is JNK, whether it is Ladakh, Dadar Nagar Haveli, Daman and Diu, Andaman and Nicobar, Lakshadweep, these are all union territories, Delhi and Puducherry. Now Delhi and Puducherry are exceptions where parliament has delegated some power to the local assembly, although union territory of Jammu and Kashmir के लिए भी दिल्ली वाला मॉडल फेज आउट किया गया है, but since it is not being implemented, so जब तक स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली दोबारा फंक्शनल नहीं होती, तो यूनियन टेरिटरी में जो भी लेजिस्लेटिव चेंजेस करने हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, वो सारा काम आपका पार्लियामेंट करेगा। यही फर्क होता है यूनियन टेरिटरी और स्टेट में। स्टेट को स्टेट लिस्ट के सारे पावर्स मिलते हैं, यूनियन टेरिटरी केस में स्टेट लिस्ट के पावर्स भी पार्लियामेंट के पास होते हैं। जब किसी यूनियन टेरिटरी को स्टेट असेंबली दी जाती है तो पार्लियामेंट उसमें क्या करता है, उस स्टेट लिस्ट के कुछ पावर्स वो उस यूनियन टेरिटरी की असेंबली को ट्रांसफर कर देता है, जैसे दिल्ली के केस में किया या पुडुचेरी के केस में। तो आगे चल के जब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का भी अपना जब असेंबली होगा, तो उसको भी वो सारे पावर्स पार्लियामेंट डेलीगेट करेगा जो लोकल लेवल पे जरूरी है। तो हो सकता है उसमें कोऑपरेटिव्स के भी पावर वो ट्रांसफर कर दें।
आज की तारीख में आपको ये याद रखना है कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जगह पे अब क्योंकि यूनियन टेरिटरी है और वो भी दो हिस्सों में बटी हुई है, तो इन दोनों यूनियन टेरिटरीज में आपके जो भी लेजिस्लेटिव चेंजेस करने होंगे, आज प्रेजेंट टाइम में जम्मू एंड कश्मीर हो या लद्दाख हो, यहाँ पे कोई भी लीगल चेंज करना है, कोई नया एक्ट बनाना है, कुछ भी करना है, ये जिम्मेदारी आपके पार्लियामेंट की। स्टेट और यूटी में यही फर्क होता है। यूनियन टेरिटरी का मतलब ये होता है कि यूनियन टेरिटरी में जो भी लीगल चेंजेस होंगे वो सब पार्लियामेंट के उसे होंगे। यूनियन टेरिटरी का स्टेटस हो जाने से किसी भी रीजन का फंडामेंटल राइट्स या पब्लिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एडमिनिस्ट्रेटिवली जो कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट से हटके पार्लियामेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ जाता है। बस ये फर्क होता है और कोई फर्क नहीं। बाकी राइट्स ड्यूटीज वो बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस जो कमांड है वो स्टेट की जगह पे सेंटर के पास आ जाएगी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, सेंटर जो है वो अपने पोर्शन को कमांड करता है, स्टेट अपने पोर्शन को कमांड करती है, और लोग जो है वो दोनों गवर्नमेंट्स को इलेक्ट करते हैं। यूनियन टेरिटरी के केस में क्या होता है, लोग सिर्फ और सिर्फ यूनियन के लिए वोट करते हैं क्योंकि उनकी स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट नहीं होती। कुछ यूनियन टेरिटरीज में जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो वहां पे ऑप्शन दिया जाता है लोकल इलेक्शंस का, ठीक है ना। तो जनरली आप देखेंगे कि अगर आप इंडिया को हमारे कंट्री के सिस्टम को देखेंगे तो हमारे यहाँ 3 लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है। एक होती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे आते हैं पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। इंडिया में 3 टियर डेमोक्रेसी फॉलो होती है। लेकिन जब हम यूनियन टेरिटरी में जाते हैं तो एक नॉर्मल यूनियन टेरिटरी में यूनियन गवर्नमेंट के नीचे सीधा सीधा आपके पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज होते हैं, क्योंकि स्टेट उस पर्टिकुलर रीजन का एडमिनिस्ट्रेशन भी इनकी जिम्मेदारी होती है। दिल्ली और पुडुचेरी के केस में उन्होंने क्या किया है कि यूनियन गवर्नमेंट के नीचे उन्होंने यूनियन टेरिटरी की अपनी गवर्नमेंट दी है जिसको लोग इलेक्ट करते हैं, लेकिन इसके पावर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और फिर उसके नीचे आपके पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज होते हैं। यही वाला मॉडल आगे चल के यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट किया जाएगा। जब भी ये इंप्लीमेंट किया जाएगा तो ये वही मॉडल होगा जो दिल्ली में है, कि दिल्ली की गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दे दिए जाएंगे, उन पावर्स को एक्सरसाइज करना, उन पावर्स को मेंटेन करना, इंप्लीमेंट करना, वो जिम्मेदारी यूनियन टेरिटरी की उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। बाकी सारा काम आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आज के टाइम पे जो भी चेंजेस एक्ट्स में होंगे वो सारे चेंजेस आपके पार्लियामेंट के थ्रू होंगे, क्योंकि प्रेजेंटली द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अ प्रॉपर यूनियन टेरिटरी। प्रॉपर यूनियन टेरिटरी का मतलब इट इज बीइंग डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इसीलिए आप देखेंगे कि यूटीज जो होते हैं वहां पे गवर्नर नहीं होता है, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ही इज द डेप्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट। क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो प्रेसिडेंट के नाम पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट वहां नहीं आ सकता, तो उसके नाम पे ये चलाने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट के ल्यूटिनेंट की होती है। तो वो ल्यूटिनेंट को ही आप एलजी बोलते हैं, ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। जब स्टेट होती है कोई तो वहां पे ये एलजी नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कौन होता है, वहां पे गवर्नर होता है जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। आज की तारीख में आपसे कोई पूछे कि जेएनके का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, तो आप बोलेंगे प्रेसिडेंट। उनके बिहाफ पे उसको चलाने की जिम्मेदारी इनकी है, उनके बिहाफ पे वो चलाने की जिम्मेदारी इनकी है। तो ये आपको याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट आपकी रजिस्ट्रार अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल रजिस्ट्रार अपॉइंट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पावर्स जो है वो रजिस्ट्रार के किसी भी उसके दूसरे असिस्टेंट को ट्रांसफर कर सकती है। बट तीनों ही केसेस में आपको याद रखना है कि ओवरऑल सुपरिटेंडेंस, ओवरऑल गवर्नेंस का जो पावर है वो ऑफिशियल रजिस्ट्रार जो होता है स्टेट का उसी के पास रहता है, ठीक है। जो ऑफिशियल रजिस्ट्रार है ज्यादातर पावर्स उसी के पास रहते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि किन किन सोसाइटीज को रजिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करती है एंड प्राइमरली उसका काम है इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करना लोगों के, उन सारे लोगों को आपके
रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपको याद रखना है कि 1989 के एक्ट में आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दे दिए गए। सेक्शन 113 में ये ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कि आप इन इन कामों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो सोसाइटीज वो रजिस्टर होंगी जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करती हैं, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए लोगों के काम करती हैं और जो डेमोक्रेटिकली चलाई जाती हैं। इन तीन तरीके की आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हम रजिस्टर करेंगे। इसके साथ साथ वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनके ऑब्जेक्ट हमारे सेक्शन 113 से मिलते हैं, उन सबको आप इस 1989 के एक्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। उन सबको आप इस 1989 के एक्ट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी। अगेन आपको याद होगा कि जब भी हम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है उसके रजिस्ट्रेशन पे। ऑफिशियली किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का बर्थ डेट होता है उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो होता है उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब रजिस्ट्रेशन के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो आपको याद रखना है कि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो वो हमेशा रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास जाती है। तो मल्टी स्टेट सोसाइटीज के केस में वो एप्लीकेशन आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजते हैं, लेकिन जब आप किसी लोकल लेवल पे कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं यानी कि स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो वो एप्लीकेशन जो है वो आपको स्टेट के रजिस्ट्रार को भेजनी होती है। तो यहाँ पे भी जब आप एप्लीकेशन देने जाएंगे तो आपको कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना है। पहला कंडीशन क्या है कि जब भी आप एप्लीकेशन देने जाएंगे तो आपको याद रखना है कि आपकी सोसाइटी के जो बाईलॉज हैं, आपकी सोसाइटी के जो बाईलॉज हैं, बाईलॉज का मतलब फिर से अगर आप याद रखें, बाईलॉज का मतलब होता है सोसाइटी का पूरा लेखा जोखा। बाईलॉज का मतलब हो गया सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करेगी, क्या काम करना है, कैसे काम होगा, क्या जनरल बॉडी होगी, क्या सब। इन सब बाईलॉज की आपको 3-3 कॉपी जो है अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करनी है। यानी कि आप पहले अपनी सोसाइटी बनाएंगे, उस सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर तय करेंगे। जब वो पूरा स्ट्रक्चर आप तय कर लेंगे, इसके बाद आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज के स्ट्रक्चर को लेके आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको इन बाईलॉज की 3-3 कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। तो किसी भी नई कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करने के टाइम पे उसके बाईलॉज की 3 कॉपी लगाई जाती है। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो आपको ये याद रखना है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आपको 3 कॉपीज अपने बाईलॉज की भी ले जानी है। इसके बाद दूसरी बात क्या याद रखनी है? दूसरी बात याद रखनी ये है कि जिस सोसाइटी के सारे एप्लीकेंट्स यानी कि सारे मेंबर्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि सोसाइटी के सारे मेंबर्स जहां पे इंडिविजुअल्स हैं वहां पे एप्लीकेशन पे कम से कम 100 लोगों का साइन होना चाहिए। जहां पे इंडिविजुअल्स हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी के केस में, वहां पे कम से कम 100 लोगों के साइन होने चाहिए। तो आप एक प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी बना रहे हैं तो उस केस में कम से कम आपके 100 लोगों के साइन होने चाहिए। और जो नॉन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज हैं वहां पे कम से कम आपके 50 लोगों का साइन होना चाहिए। यानी कि जहां पे सारे के सारे मेंबर्स इंडिविजुअल्स हैं, जहां पे जो भी मेंबर्स होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जो भी एप्लीकेंट्स हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स हैं। तो किसी एग्रीकल्चरल सोसाइटी के लिए आपको कम से कम 100 लोगों के साइन की जरूरत है रजिस्ट्रेशन के लिए, और किसी नॉन एग्रीकल्चरल सोसाइटी के लिए आपको कम से कम 50 लोगों की साइन की जरूरत है। ठीक है, और अगर मान लीजिए जब आप एप्लीकेशन देने जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो उस केस में उनको एक यूनिट माना जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा हूँ और मेरे 100 मेंबर्स में से लेट्स से 4 हस्बैंड हैं और उनके साथ उनकी 4 वाइफ्स हैं, तो ये 8 मेंबर्स नहीं होंगे, इनको मिला के 4 में होंगे, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ को इक्वल टू 1 माना जाता है। ठीक है, हालांकि ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता,
लेकिन स्टेट लेवल पे जब आप कोऑपरेटिव्स के रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो जब वो जो मिनिमम मेंबरशिप आपको रिक्वायर्ड होती है, तो अगर एग्रीकल्चर सोसाइटी है तो उसके लिए कम से कम 100 मेंबर्स होने चाहिए। तो उन 100 में अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो उन हस्बैंड और वाइफ को मिला के एक यूनिट माना जाएगा। ये नहीं है कि घर से चार मान लीजिए एक गांव के 4 परिवारों ने मिलकर कोऑपरेटिव बनाई और उनके हस्बैंड वाइफ मिलके लेट्स से 40 लोग हो गए, ऐसा नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ के केस में दोनों को मिला के एक एज अ सिंगल मेंबर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर के केस में कम से कम 100 लोग होने चाहिए साइन कर एप्लीकेशन के टाइम पे, और नॉन एग्रीकल्चर के केस में कम से कम 50 लोग होने चाहिए उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जहां पे मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि जो मेंबरशिप है वो सबके लिए खुली होती है। वो लोग जो ऑर्डिनरली उस जगह पे रह रहे हैं, जहां पे भी सोसाइटी काम कर रही है या जहां पे भी वो सर्विस ऑफर कर रही है, उन जगहों पे रहने वाले लोग जो हैं वो सोसाइटी की मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। ऑर्डिनरली रेजिडेंट का मतलब होता है वो रेजिडेंसी जो अमूमन उसका द definition is that the person ordinarily reside in this area. That means he may not be available 24/7, but he generally resides in this area. So this is called ordinarily resident. So membership is open to all people in the area of operation of the cooperative society who are ordinarily resident of that area. कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस भी इलाके में रजिस्टर की जा रही है और उसका जो भी एरिया ऑफ ऑपरेशन है, जहां से वो काम करेंगे, जिन लोगों को वो एंटरटेन करेंगे, उन सारे लोगों में से कोई भी सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। बस आपको याद रखना है कि वो वहां का रहने वाला होना चाहिए। ऑर्डिनरली ही शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ दैट एरिया। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो फेडरल और एपेक्स लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जो स्टेट लेवल पे हायर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस होंगे या जो फेडरल इंस्टीट्यूशंस होंगे, उसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो फुल टाइम मेंबरशिप नहीं ले सकते। वो सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट या नॉर्मल मेंबर्स बन सकते हैं, नॉमिनल मेंबर्स बन सकते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट के लेवल पे जो फेडरल सोसाइटीज होती हैं उसमें मेंबरशिप कैसे आती है। तो आपको याद रखना है फेडरल सोसाइटीज में मेंबरशिप जो है वो दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ही होती है। इंडिविजुअल्स जो हैं वो फेडरल सोसाइटीज में मेंबर्स नहीं हो सकते। जम्मू एंड कश्मीर का एक्ट ये बोलता है कि जो लोग इंडिविजुअल्स के तौर पे फेडरल या एपेक्स इंस्टीट्यूशन से जुड़ना चाहते हैं, उनको इसका बात का ध्यान रखना है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी फेडरल सोसाइटी का फुल टाइम मेंबर नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ उस सोसाइटी का एसोसिएट या नॉर्मल मेंबर हो सकता है। ठीक है, एसोसिएट या फिर नॉमिनल मेंबर हो सकता है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो भी एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है, जिस भी इंसान ने रजिस्ट्रेशन की अर्जी लगाई है, all the applicants must be above 18 years. तो रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको याद रखना है कि जो भी इंडिविजुअल्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म में साइन कर रहे हैं उन सब का 18 साल से ऊपर होना जरूरी है, यानी कि वो सारे एडल्ट होने चाहिए। और एडल्ट होने के लिए एज जो दी गई है एक्ट में, वो दी गई है 18 साल, वो दी गई है 18 साल। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि अगर जब आप एप्लीकेशन सबमिट करने जाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि सारे एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपरली साइन होनी चाहिए। सारी एप्लीकेशंस आपकी प्रॉपरली साइन होनी चाहिए। जहां पे इंडिविजुअल्स हैं वहां पे तो हर एक इंडिविजुअल को साइन करना है, और जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी मेंबर बनाने की बात बोली गई है, वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज जब किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबर बनती हैं तो वो अपनी तरफ से कुछ लोगों को उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में एज अ ऑथराइज्ड पर्सन अपॉइंट करती हैं। तो उन ऑथराइज्ड लोगों का उस एप्लीकेशन फॉर्म में साइन करना जरूरी है। इंडिविजुअल्स हैं तो सब करेंगे साइन,
लेकिन अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एप्लीकेंट में है एज अ मेंबर, तो उनके बिहाफ पे जिन लोगों को उन्होंने ऑथराइज किया है वो साइन करेंगे। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू दी जम्मू एंड कश्मीर एक्ट ऑफ 1989, जहां कहीं पे कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की बात हो रही है जहां पे फंड बनाया जाएगा और उसको लोगों को क्रेडिट के तौर पे दिया जाएगा, वहां पे आपको याद रखना है कि ऐसी सोसाइटीज जहाँ पे सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, वहां पे एक चीज याद रखनी है कि सारे एप्लीकेंट्स का एक गांव का होना जरूरी है, या फिर सारे एप्लीकेंट्स का एक ग्रुप ऑफ विलेज का होना जरूरी है, या फिर वो सेम क्लास के हों या सेम ऑक्यूपेशन के हों। तो वो जो कम्युनिटी मैनेजमेंट की बात है वो भी यहाँ पे आ जाती है कि अगर हम कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं जहाँ पे एप्लीकेंट्स का बेसिकली काम, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए बना रहे हैं ताकि वो एक फंड बना सके जिसके थ्रू वो लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड कर सके, तो वहां पे आपको ये याद रखना है कि वहां पे जब मेंबरशिप की बात आएगी, एप्लीकेशन की बात आएगी, तो इस बात का ध्यान रखना है कि सारे एप्लीकेंट्स जो उस समय सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए आगे आ रहे हैं, या तो वो एक गांव के हों, या तो वो किसी एक गांव के ग्रुप के हों, या फिर वो किसी एक सेम क्लास के हों, या फिर वो सेम काम करते हो। तो कुल मिला के वही लोग एप्लीकेंट के तौर पे सिग्नेचर कर सकते हैं जो या तो एक गांव के हैं, या तो एक गांव के ग्रुप के हैं, या फिर वो एक सेम क्लास के हैं, या फिर वो सेम काम करते हैं। तभी जाके आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी, और इसके साथ साथ ही हर मेंबर को उस पर साइन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 100 मेंबर्स का आपका कोऑपरेटिव बनाने का प्लान है और उसमें से 99 ही मेंबर्स ने साइन किया है। अगर पूरे के पूरे मेंबर्स ने साइन नहीं किया है तो इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है तो हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाए, आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये तो हो गया प्री रिक्विजिट्स जो हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए। इसके बाद आता है आपका रजिस्ट्रेशन, कि ये तो हो गया कि हमें रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि रजिस्ट्रेशन करेगा कौन। तो पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करने की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार की होती है। रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा। कब इशू करेगा? जब वो सेटिस्फाइड है। किन चीजों को लेके? पहली चीज कि जो भी एप्लीकेशन आई है वो हमारे 1989 के एक्ट में जो भी प्रोविजंस और जो भी रूल्स दिए हैं उनको मानती है, यानी कि एप्लीकेशन इज इन कंप्लीट कंप्लायंस। एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कंप्लायंस में है आपके एक्ट के। रजिस्ट्रेशन तभी दिया जाएगा जब आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्ट के कंप्लीट कंप्लायंस में, वो एक्ट के कंप्लीट कंप्लायंस में। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अगर रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन देखी और उसको ये लगा कि भाई आपका एप्लीकेशन जो है पूरी तरीके से हमारे एक्ट के अंदर आता है, कोई भी बात इसमें ये नहीं लिखी हुई है विच इज अगेंस्ट द एक्ट, या सारी बातें एज पर दी रूल्स हैं, तो आपकी एप्लीकेशन एक स्टेप आगे बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा और क्या कंडीशंस होती हैं? इसके अलावा और कंडीशंस भी होती हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि जो सेक्शन 4 में आपके ऑब्जेक्ट्स प्रपोज किए गए हैं, तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे एक्ट के हिसाब से हैं। दूसरा, जो हमारी सोसाइटी के प्रिंसिपल्स हैं वो सोशल जस्टिस के साथ कंसिस्टेंट है। हमारे जो बाई लॉज हैं, यानी कि सोसाइटी के जो आप बाई लॉज बना रहे हैं वो एक्ट के खिलाफ नहीं है। एंड साउंड बिजनेस और रीजनेबल चांसेस ऑफ सक्सेस को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं। मतलब आप कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बना रहे हैं जिसका कोई रोल ही नहीं है, जिसमें कोई फायदा ही ना हो, जो प्राइमरली प्राइमा फेसी ये लगे कि ये तो नुकसान वाली बात है। तो आपके बाई लॉज जो हैं वो एक्ट के अकॉर्डिंग है, आपके ऑब्जेक्ट्स एक्ट के अकॉर्डिंग है, आपका एम एक्ट के अकॉर्डिंग है, आप जो भी सोसाइटी बना रहे हैं वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो इन सारी चीजों में अगर आपकी एप्लीकेशन को जज किया जाएगा और अगर उनको लगता है कि हाँ भाई ये सारी चीजें सही हैं, तो वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देंगे। ठीक है। अब अप्रूवल के लिए रजिस्ट्रार को कुछ टाइम दिया गया है कि जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो रजिस्ट्रार को कुछ टाइम दिया गया, और वो टाइम क्या दिया गया? रजिस्ट्रार को जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे
तो रजिस्ट्रार आपको 6 महीने का एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देगा। रजिस्ट्रार जो है वो आपको जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे वहां पे रजिस्ट्रार जो है वो आपको 6 महीने का, मैक्सिमम 6 मंथ्स का, वो रजिस्ट्रार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने महीने का देगा, बट मैक्सिमम 6 महीने के लिए वो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा। प्रोविजनल का मतलब टेम्परेरी। इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि अगर आपने नीचे दिए हुई जो कंडीशंस है उनको फुलफिल किया तो हम आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे। वो कंडीशंस क्या होंगी, वो बताएंगे कि भाई आप कैपिटल बिल्डिंग कहाँ से लाओगे, पैसे कहाँ से आएंगे, मेंबरशिप कैसे होगी, मोबिलाइजेशन कैसे होगा, एजुकेशन कैसे होगा, आपकी आपके कोऑपरेटिव्स का डेवलपमेंट मॉडल क्या है, क्या प्लान्स हैं, क्या स्कीम्स लेके आप मार्केट में जा रहे हो। तो ये 2-3 चीजें आपको उन 6 महीनों में जस्टिफाई करनी कि हाँ भाई, हाँ हाँ हमारे हम जो कोऑपरेटिव बना रहे हैं उसके लिए फंडिंग यहाँ से आएगी, इस तरीके से आपका मेंबरशिप का मोबिलाइजेशन होगा, इस तरीके से आपके प्रोजेक्ट्स, प्लान्स और स्कीम्स बनाए जाएंगे, इस तरह से आपके प्रोजेक्ट्स, प्लान्स और स्कीम्स बनाए जाएंगे। इन सारी चीजों को अगर आप टाइमली सबमिट करेंगे तो अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि हाँ भाई आपने ये सारी चीजें ठीक से करी हैं तो आपके इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट को 6 महीने के अंदर वो परमानेंट सर्टिफिकेट में बदल सकता है। तो आपको याद रखना है कि रजिस्ट्रार को जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो रजिस्ट्रार आपको 6 महीने के लिए एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आगे आने वाले 6 महीनों में अगर आप अपनी सोसाइटी का ब्लूप्रिंट रजिस्ट्रार के सामने रखते हैं कि कैपिटल मोबिलाइजेशन कैसे होगा, मेंबरशिप का मोबिलाइजेशन कैसे होगा, क्या डेवलपमेंट होगा, प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके पास, क्या स्कीम्स हैं, तो फिर रजिस्ट्रार आपको वो सर्टिफिकेट दे देगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि रजिस्ट्रार ने आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया तो फिर उसको वो रीजंस भी बताने होंगे कि उसने क्यों मना किया। तो 6 महीने के अंदर अंदर अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा कि भाई आपका वो रजिस्ट्रेशन हमने डिस्करेज कर दिया, क्यों किया है उसके रीजंस भी उनको बताने पड़ेंगे। तो यहाँ दो चीजें हैं। पहला, अगर आपकी एप्लीकेशन सारी चीजों पे खरी उतरती है तो रजिस्ट्रार आपको 6 महीने के लिए एक टेम्परेरी सर्टिफिकेट इशू करेगा। ठीक है। और टेम्परेरी सर्टिफिकेट के